Students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Guys, अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? सर हम लोग क्लास इलस्ट्रेशन 3 कर रहे थे. Sallas, your voice is coming low. Please tell again. Your voice is coming low.
So we wrote first law of thermodynamics and then class illustration 3 के questions किए थे. ओके वर्क डन वगैरह नहीं किया है डिस्कस ना वर्क डन बाय गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस नहीं so work done by gas in different processes so although you have done in chemistry लेकिन ठीक है हम फिर से एक बार करेंगे यहाँ पर so work done how will you calculate जो है so method 1 is work done is integral PdV integrate So this we did, no? yes this is and work done दूसरा method जो है area under PV का So this we did. We did this. okay Yes, sign convention was also done, sir. We didn't do it for different processes. You are Isobaric. doing for isobaric, isobaric and all, no? अब isobaric process के लिए करना है sir class illustration 3 were done only for sums. isobaric process का नहीं किया मैंने थ्योरी में नहीं लिखा है ना नोट्स Sure. No, sir, you only derived the formula for work for different processes. It is left. Yes, sir, it's left. Sir. Hello. yes हाँ Sir, I have just joined. Have you like taught any concept till now? नहीं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं Okay, sir. okay. so isobaric process के लिए ठीक है तो फर्स्ट मेथड मेथड 1 इंटीग्रेशन से ओके तो इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है इंटीग्रल PdV और इसमें वर्क डन बाय गैस और इसमें प्रेशर इज कांस्टेंट dV और लिमिट्स क्या हो जाएंगे V1 V2 तो P0 dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा एंड दिस विल बी V2 माइनस V1 ठीक है तो बेसिकली क्या बन गया वर्क डन इज इक्वल टू द कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा V एंड व्हिच बिकम्स इक्वल टू NR डेल्टा T मतलब वही हो गया P टाइम्स V2 माइनस V1 is same as NR डेल्टा D को T2 माइनस T1 कैन राइट और सेकेंड वाला ठीक है ग्राफिकली ग्राफ से यहाँ पॉसिबल है ओके सो P एंड V का तो ग्राफ ये आ गया इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V1 V2 एरो इधर है ठीक है तो ये वाला एरिया हो जाएगा है ना और इसको क्या कॉल करोगे दिस इज प्रेशर इज कांस्टेंट P0 और V is nRT this is constant volume increase हो रहा है temperature also increasing so this can be called as isobaric heating let's call this as isobaric heating या isobaric expansion you can write heating या expansion और work done क्या होगा ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया we know P0 times the constant pressure times V2 minus V1 which is same as NR P2 minus V1 Guys, what time is the exam today? आपका exam कितने बजे है? So 3:30 3:10 तक ज्वाइन कर लेना पड़ता हाँ सर 3:10 तक वो मीटिंग स्टार्ट हो जाता है फिर हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है Okay, ठीक है. Ayush, please take screenshot also. Oh yeah, sure thing. Sir, are you giving the permission to ask doubts now? अभी इसमें कुछ doubts है क्या? Yes, sir. I just want you to repeat the first method to एक बार समझा दो ना. हाँ, method 2 is what area under curve. हाँ, area under PV curve with the volume axis.
Yes, sir. ना एरिया अंडर पीवी का विद द वॉल्यूम एक्सिस में, तो एरिया वो डायग्राम अच्छा हो गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया वी नो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना, तो लेंथ इनटू हाँ ब्रेड्थ सर. से एक डायमेंशन इज p0 एंड द अदर डायमेंशन इज v2 minus v1, so p0 into v2 minus v1 हो गया. हाँ. तो क्वेश्चन में मोल्स दे देंगे वो लोग. यस कुछ तो हाँ मोस्ट गिवन रहेगा, nr2 d2 minus t1 ओके निकालने सर, ओके सर. थैंक यू सर, थैंक यू. Noted, sir. के. Sir, 2 minutes. Sir, I've taken the screenshot already. We have taken. Sir, wait for. So guys, as you said कि as you guys asked me ना not to give homework, तो मैंने homework नहीं दिया था, लेकिन जो है after today's exam at 4:30 Yes, sir. आज last exam है. उसके बाद से फिर guys आपको homework attempt करना है ना. हाँ सर, कल से Yes. होमवर्क चालू कर दो. सर कल नहीं सर मंडे. कल से कि आज ही से चालू करो ना सारे after exam. सर थोड़ा तो चिल करेंगे. हाँ सर, सोना. ठीक है, तो 1-2 घंटा नीचे प्लीज. सर वेडनेसडे को Sir, एचसीवी के डाउट्स 6:30 लोग. sharp. पहले बुकलेट करते हैं गाइस, बुकलेट प्रायोरिटी फर्स्ट रखते हैं. सर वैसे सर फिर वो question आपसे, हमेशा सर एचसीवी ये लास्ट में चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने में मतलब और कितने क्लासेस लगेंगे? हीट एंड थर्मो के लिए हाँ सर. अभी थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर भी तो है. तो तब ये थोड़ा मतलब कितना लाइक 1 टाइप्स और जाएगा क्या? नहीं उतना नहीं जाएगा. ओह ठीक है, थैंक यू Sir, सर. heat transfer last topic है ना? कुछ नहीं भेजा ना? क्या आपने केटीजी के बाद कुछ नहीं भेजा ना? सर ने कल ही भेजा था। कल भेजा. कल ही भेजा। बहुत कल ही भेजा सर आपने थर्मो का होमवर्क. फाइन. ना. नोटेड सर. तो एक बार ग्राफ रहने देना प्लीज. सर आपने जो बोला था ये वीक का वेडनेसडे सबमिशन डेट है, डेडलाइन वो लास्ट होमवर्क का था या कल का जो भेजा वो इंक्लूड करके था? बुकलेट का तो ठीक है, बुकलेट तक का पूरा. तो सर कल का भी? बुकलेट तक का हो जाए तो ट्राई करो ना. ओके सर. यार इलस्ट्रेशंस रह गए हैं, इलस्ट्रेशंस अपनी कर जा रहा है ना. फायदा हुआ हमारा. ट्राई तो पूरा है. सबका वीडियो. ओके यस मैम. चलो ठीक है. नाउ say isochronic process, same volume constant. ठीक है, volume constant. So change in volume 0. Method 1 work done by gas. Integral P dV 0. Work done by gas जो है 0. Second method भाई ये हो गया PV curve and volume constant है. वॉल्यूम कांस्टेंट ये हो गया, ये वाला सम v0. अब जो है अब एरो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है ना. अगर आपने ऐसा दिखाया है तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें PV is nRT. if you have shown arrow this way, so this means pressure is increasing. pressure increase हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है ना. so you can call this as isoporic heating. isoporic heating. और क्या हो रहा है, एरिया अंडर पीवी का विद द वॉल्यूम एक्सिस. तो वर्क डन इज एरिया एंड देयर इज नो एरिया, ये तो लाइन है ना, एरिया इनक्लोज्ड इज 0 ना. तो यहाँ पे फिजिबल था ग्राफिकली, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, 0 शो कर लिया. उसके पहले वाले में P डेल्टा V शो कर लिया था आइसोबैरिक के लिए. नेक्स्ट इज आइसोथर्मल. हेलो सर यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम लोग प्रेशर ऑफ गैस ले रहे हैं ना. प्रेशर ऑफ गैस और यहाँ स्लो प्रोसेस ही ले रहे हैं रिवर्सिबल. हाँ सर ठीक है सर.
चलो so erase this one. So now isothermal पे आते हैं. Isothermal process. Isothermal process के लिए जो है same temperature. So temperature is constant. So PV is nRT में ये constant हो गया right hand side. अब method 1. तो method 1 क्या हो जाएगा integral P dV. Okay, you can write P as nRT naught by V. nRT naught by V dV. Volume V1 to V2. तो ये nRT naught log of V2 by V1. और also you have PV constant. So यहाँ से क्या मिल जाएगा P1 V1 equal to P2 V2. So V2 by V1 is P1 by P2. So you can also write nRT naught log of P1 by P2. This first method. Second जो है इसका ग्राफ we have discussed. इसका ग्राफ कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसका स्लोप ग्राफ का स्लोप dp by dv याद है ना? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व dp by dv आइसोथर्मल के लिए कितना आया था माइनस ऑफ p by v ना. और अगर मान लो यहाँ एरिया निकालने जाओगे भाई अब ये कर्व का एरिया तो मुश्किल है निकालना. ये इनिशियल v1 v2 अब ये एरिया यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है इंटीग्रेशन से निकाला लेकिन ग्राफिकली ये वाला एरिया होगा. एंड ये वाला फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया है ना गाइस. स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज माइनस p by v. we have derived ना ये वाला आयुष हमने किया है ना. Slope of isothermal curve minus p by v. Yeah, okay, yeah. So we didn't do slope of isothermal is minus c by v. We actually didn't discuss any graphs of like the special processes. Okay, ठीक है. So okay इसका ग्राफ हमने जो है आइसो ठीक है कर सकते हैं. देखो PV is nRT naught. Now differentiate. Differentiate with respect to time or any other variable. तो क्या जाएगा P dV by dt plus V into dP by dt. Right hand side is a constant, so it goes out. अब dt भी हट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से we'll get P dV plus V dP equal to 0 मिल जाएगा. Yes, sir. Now you bring it to other side. तो V dP minus P dV हो जाएगा है ना. तो इससे जो है dP by dV की वैल्यू क्या जाएगी dP by dV minus p by v. Minus p by v. Okay, sir. So you have not discussed any graphs before this. We have only like discussed that area under the curve is the work done. Okay, ठीक है. एक मिनट रुक जाओ फिर ये वाला ग्राफ भी मैं एक वाला ग्राफ मैंने डिस्कस नहीं किया ना. एक बार डिस्कस करता हूँ तो आइसोथर्मल का ये वाला ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आया. एक मिनट. हाँ सर एक्चुअली मैं वही बोलने वाला था. डिस्कस नहीं किया एक्चुअली हम सब म्यूट पे थे इसलिए. Okay, I will discuss. yes हाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा.
So, इस साइड का गाइस हो गया, राइट साइड का कॉपी। ओके ओके ओके। ओके चल, हाँ सभी एक बार कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो है वी नो यहाँ पर क्या हो गया, पीवी इज एनआरटी नॉट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी विल बी क्या जाएगा यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला पूरा कांस्टेंट है, तो कैसा आ जाएगा, एट वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर जो है विल डिक्रीज। सो ग्राफ, ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ आ रहा है। अब इसमें जो है सपोज तो पी एंड बी का ग्राफ, ये सपोज ये इनिशियल पॉइंट और यहाँ कहीं आ रहा है ना, डिक्रीज होना पड़ेगा। अब एज वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर मस्ट डिक्रीज। अब इसके तीन पॉसिबिलिटीज है ग्राफ, हाँ, या स्ट्रेट लाइन हो जाए, ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं यहाँ। सो तीनों में से जो है हाउ यू डिसाइड ना। सो ये वाला सबने कॉपी कर लिया, कैन आई इरेज दिस वन लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके, चलो ठीक है। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। हाँ, सो व्हाट्स द इक्वेशन वी हैव, पीवी इज एनआरटी ना, पीवी इज एनआरटी नॉट। तो अब जो है इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। दिस इज अ कांस्टेंट, एक्स वाई इज अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब उसके बाद बचा ये वाला और ये वाला, तो दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे। अब ये तो लीनियर तो नहीं, लीनियर के बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर दिया फ्रॉम द ग्राफ। अब स्लोप से करेंगे, तो dp बाई dv ना, आइसोथर्मल का स्लोप, स्लोप इज dp बाई dv which is equal to माइनस p बाई v। नेगेटिव है ना, अब स्लोप, हाँ इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। ओके, तो जो है, और इसको हमने p की जगह, और यू कैन राइट p की जगह, यू कैन राइट nRT बाई v नॉट, nRT नॉट बाई v, p की जगह nRT नॉट बाई v, so this becomes minus nRT नॉट बाई v स्क्वायर। यहाँ पे रखोगे तो माइनस nRT नॉट बाई v स्क्वायर। सो इसका मैग्नीट्यूड dp बाई dv का मैग्नीट्यूड nRT नॉट बाई v स्क्वायर। सो यू कैन सी ये क्या हो रहा है, दोनों में नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन एज v इंक्रीजेस तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होते जाएगा। अब इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग स्टीपर, है ना, ये वाला इट इज बिकमिंग स्टीपर, और ये वाला क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, ये फ्लैट होते जा रहा है ना, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड। हाँ, सो वी विल रिजेक्ट दिस ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो ग्राफ जो है आइसोथर्मल वाले का हमने ऐसा डिसाइड किया। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सर हाँ हाँ अगर हम ये रिलेशन भी ले कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उससे भी ग्राफ मिल जाएगा ना। हाँ, नहीं प्रेशर, हाँ मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है ना, वो भी ले सकते हैं ना। तो जो है, तो हमने, तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन और दो कर्व्स। तो हमने बोला स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो पहला बीच वाला ऑप्शन पहले रिजेक्ट कर लिया, फिर दो बचे हुए, ऊपर वाला और नीचे वाला कर्व। नहीं, मैं बोल रहा था कि हम लोग इतनी मेहनत करे, वो हम लोग वो ले ले प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उससे 1 मिनट में ग्राफ आ जाएगा फटाफट से। इनवर्स से मतलब क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है ना। हाँ, तो वही कर सकते थे ना सर हम लोग। तो लीनियर में भी बढ़ रहा है तो कम हो रहा है ना, लीनियर वाला भी तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ओके। इसलिए हमने बोला कि ठीक है, तीनों हो सकता है, और आपने अभी हाइपरबोला पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने बोला ठीक है, तीनों हो सकता है, तीनों में से बेस्ट होते हैं, ठीक है, ओके। नहीं होगा। हाँ, अब जो है दूसरा वाला, एंड द सेकंड वन क्या है, नहीं दर्शन, दर्शन तुम्हारा कौन सा डाउट है, फिर से वही वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, थर्ड ग्राफ, अब देखो क्या होगा।
और स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप की वैल्यू क्या आई? स्लोप की वैल्यू आ गई ये वाली आई, dp by dv is minus p by v. You put the value of p as nr t naught by v. तो ये क्या बन जाएगा? nr t naught by v square. माइनस साइन तो है एंड न्यूमरेटर इज कांस्टेंट. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? nr t naught by v square. तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. तो मैग्नीट्यूड इसी में ही कम हो रहा है देखो. और ये वाला ग्राफ तो स्टीप हो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ tan थीटा ना. हाँ, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सिर्फ. हाँ, मैग्नीट्यूड. साइन तो दोनों का ही नेगेटिव थे, तो अब कंपैरिजन मैग्नीट्यूड पे आ गया. तो मैग्नीट्यूड से नीचे वाला ग्राफ ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने बाकी दोनों को रिजेक्ट कर दिया. सर हाँ सर लास्ट पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, वो आपने वो टॉप वाले ग्राफ को क्यों रिजेक्ट किया? हाँ, उस वाले ग्राफ का मैग्नीट्यूड देखो, इस वाले ग्राफ का जो है ये स्टीप होते जा रहा है. हाँ हाँ सर. तो स्टीप होते जाने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग. यस सर, समझ गया समझ गया समझ गया. यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है. सर आपने स्ट्रेट लाइन वाला क्यों किया रिजेक्ट? एक्चुअली मेरा सर नेटवर्क इशू आ रहा था. तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c, है ना. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे फॉर्म कैसे आ रहा है? xy इज इक्वल टू c. ओके सर, सर समझा. हाँ, बिल्कुल स्लोप स्ट्रेट लाइन. हेलो सर. सर हम लोग वो एक मेथड है ना, मतलब हाइपरबोला की शेप हम लोग वो इक्वेशन को लाइक dy by dx से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन dy by dx पॉजिटिव है या dy by dx का स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे भी कर सकते हैं. तो वो एक बार बता सकते हो आप? हाइपरबोला का स्लोप जो है, हाइपरबोला का स्लोप मतलब वही ना, डेरिवेटिव देके जो मैंने यहाँ पे कराया वही ना. pv हाँ इज इक्वल टू मतलब कांस्टेंट. सेकंड, जैसे कि मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के फिर आपने लाइक वैल्यूज पुट करके बेसिकली किया ना कि वो उसका स्लोप स्टीपर हो रहा है और इसका स्लोप फ्लैट हो रहा है. लेकिन हम लोग डबल डिफरेंशिएट करके भी हाइपरबोला का नहीं, फिर स्लोप और क्यों? और नहीं, ये तो वो तो मैथमेटिक्स में आगे कर्व्स में सर प्लॉट करना सिखाएंगे कि आपको जो है कैसे कर्व्स प्लॉट करना है. यहाँ पे तो हम जो है सिंपल लेंगे, यही वाला किसी की बेसिस पे सिलेक्ट हो गया ना हमारा, तो ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट हो गया उसका. कर्व प्लॉटिंग में वाला मैथ्स में आप कर लोगे, जहाँ पे ट्रेस कर्व करना पड़ेगा ना. हेलो सर. हाँ सर, हाँ. मुझे बस पूछना था कि अभी जो आपने जिधर इक्वेशन से डिराइव किया है, एक बार आप ये वाला समझा सकते हो कि v स्क्वायर कहाँ से आया? तो नहीं, देखो p की जगह क्या लिखेंगे? nRt नॉट बाई nRt v. नॉट अपॉन v. और नीचे v आ जाएगा, v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा. जी सर. ओके सर, ये बात समझ गया. और सर वो दो साइड्स जो है ग्राफ का, मतलब आपने एक नॉर्मल बनाया बीच पे, वो वाला एक्सप्लेन कर देंगे कि मतलब ये वो रिजेक्ट क्यों हुआ? तो ये वाला तो स्ट्रेट लाइन नहीं है. दिस इक्वेशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए वी कैन रिजेक्ट दिस. या हाँ सर, ये तो फॉर श्योर है. और ये ऊपर का क्यों? इसमें यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है यहाँ पर? इसमें मैग्नीट्यूड इस ग्राफ में मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, लेकिन इक्वेशन क्या कहता है? मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग एज v इंक्रीजेस. हाँ सर. तो इसलिए ऊपर वाला ग्राफ हट जाएगा. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया. सो ये तीनों के फॉर्मूलेस गाइस याद होने चाहिए. आइसोबैरिक का वर्क डन बाय गैस, आइसोकोरिक में तो 0 होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाला. हाँ, ओके ओके. चलो आई विल erase this one now. फिर साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में जो है we want to find the total work done by gas. ठीक है, we want to find total work done by gas in cyclic process. चलो अगर हमारे पास से we are given एडियाबैटिक नहीं, एडियाबैटिक अभी जो है नहीं. देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, पहले तीन. हाँ, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक
और आइसोबैरिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद साइक्लिक, फिर एडियाबैटिक को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, अभी पहले ये वाला करते हैं। हाँ, एडियाबैटिक बात करें। अब जो है उसमें पहले पीवी ग्राफ है, मान लो एक आपको दिया हुआ है, हाँ प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस लिया हमने, से ए बी सी एंड डी ऐसा, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड द वर्क डन टोटल, टोटल वर्क डन। तो हाउ विल यू फाइंड टोटल वर्क डन? तो वर्क डन टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे? सबका सम लोगे है ना, तो वर्क डन टोटल विल बी, क्या हो जाएगा, वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, वर्क डन B to C, वर्क डन C to D प्लस वर्क डन D to A, ये आएगा भाई। अब A to B में देखो, A to B में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाला आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक है तो ये वाला वर्क डन 0। सिमिलरली C to D में भी देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी आइसोकोरिक हो गया, ये भी गया, तो आपका बचा क्या, वर्क डन B to C प्लस वर्क डन D to A, ये बचा हुआ है ना, D to C और D to A। चलो ठीक है, अब वर्क डन यहाँ पे आते हैं ग्राफ में, दिस इज B एंड दिस इज B ना, पहला B to C है, B एंड C, B to C के लिए वर्क डन कौन सा हो जाएगा ग्राफिकली, भाई एरिया अंडर द पीवी कर्व विद द वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस हो गया B to C का ये वाला एरिया, एंड हियर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो ये वाला पॉजिटिव होगा, है ना, प्लस, अब ये वाला हो गया हाँ पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर अगेन पीवी कर्व, अब D to A वाला है ना, D to A, so here we have from D to A, this is D, this is A, ये ऐसा हो गया, D to A ये वाला हो गया, D to A में ये वाला, ठीक है। अब देखो ये भी यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, so it is negative। How will you find total? हाँ, टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा सम करना है ना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, सो आप इसको लाके यहाँ पे रखोगे नेगेटिव को, इस पूरे पॉजिटिव में इतना नेगेटिव रखोगे तो ये हट जाएगा, सो क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, बेसिकली ये वाला बच जाएगा, राइट। So this is equal to, you can write area, अभी तो मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एरिया साइन डिस्कस करते हैं बेटा, एरिया एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व, तो एरिया एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व। साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन इन ऑल द 3 स्टेप या 4 स्टेप कंबाइंड इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व। अभी मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ना, अब साइन डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय गैस, ऑफ वर्क डन बाय गैस, इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। यस हाँ, अभी हाँ बोला मैं डिस्कस करता हूँ, एक मिनट का साइन ना, यस हाँ, बी टू सी में जो है, इन द प्रोसेस बी टू सी पॉजिटिव क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, यहाँ पे वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। अब साइन के लिए, तो अब इसमें जो है ये वाला आई विल इरेज, ओके हाँ, तो अब जो है ठीक है, इसके लिए
So sine sine of work done total और साइक्लिक प्रोसेस। इसमें जो है सब, हाँ ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपके पास ठीक है, पॉइंट्स लिख लेते हैं। कैसा, कौन सा कर्व गिवन है? गिवन पीवी कर्व। ओके, पीवी कर्व और उसका सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस। भाई क्लॉकवाइज देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में देखो यहाँ पर कौन सा है? पॉजिटिव वाला डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला डोमिनेटिंग है, तो वर्क डन टोटल विल बी पॉजिटिव। वर्क डन टोटल का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सपोज से वही गिवन पीवी कर्व, गिवन पीवी कर्व और मान लो ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो अगर ये ऐसा होता, अभी जैसे ना ए टू बी, बी टू सी, ए टू डी, डी टू सी, बी एंड ए, ऐसा होता उल्टा, तो उस केस में गाइस ये वाला, ये इसका मैग्नीट्यूड डोमिनेटिंग है और ये साइन नेगेटिव होता, उस केस में नेगेटिव डोमिनेटिंग हो जाता, पॉजिटिव छोटा हो जाता। तो इस केस में वर्क डन टोटल का साइन क्या हो जाता? नेगेटिव। अब सपोज यू आर गिवन बीपी कर्व, मतलब वाई एक्सिस पे बीपी कर्व, और आपको दिया है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस। पीवी कर्व क्लॉकवाइज सेंस, वर्क डन पॉजिटिव। बीपी कर्व क्लॉकवाइज सेंस, वर्क डन टोटल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। वही बीपी कर्व एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वही एक ये वाला करना है, बाकी सब तो आ जाता है। और वर्क डन टोटल पॉजिटिव। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी फास्ट। ग्राफ, ग्राफ कौन सा वाला? ये वाला? यस, इसके करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ। इसमें जो है क्वेश्चंस इसके करते हैं एक तरह। यस यस, हाँ। जो भी पार्ट में, जैसे यहाँ पर, हाँ जैसे इस केस में आपका ऐसा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो वर्क बाय गैस पॉजिटिव। यस, पीवी कर्व क्लॉकवाइज सेंस, डोमिनेटिंग है पॉजिटिव, तो नेट पॉजिटिव हो गया। समर वीपी कर्व का, ठीक है, वीपी कर्व का देख लेते हैं। चलो एक मिनट। हाँ, आई विल इरेज दिस वन, वीपी वाला। हाँ चलो वीपी कर्व का देख लेते हैं। अगर वीपी कर्व जो है तो ऐसे ले लेते हैं। चलो इधर वी और पी, वीपी कर्व, वीपी कर्व और कौन सा? ये वाला ना, क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी। तो अब जो है वर्क डन टोटल के लिए, सो वर्क डन टोटल क्या आ जाएगा? वर्क डन अगेन वही सेम लिखोगे, वर्क डन ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड वर्क डन डी टू ए। अब देखो इसमें जो है क्या आ जाएगा? डी टू ए, डी टू ए के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट। बी टू सी के लिए भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बचे कौन से? ए टू बी वाला। हाँ तो ठीक है, इसमें जो है ये आपका P है और ये वाला V है ना, A to B, दिस इज A एंड दिस इज B।
एरो ऐसा दिखा रहे हैं और हमने पढ़ रखा है एरिया अंडर पीवी कर्व विथ वॉल्यूम एक्सिस, तो ये वाला हो जाएगा एरिया अंडर पीवी कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, पॉजिटिव साइन। अब सेकंड ग्राफ, सेकंड कौन सा बाकी था, ये तो हो गया ए टू बी वाला। अब सी टू डी वाला देखिए ना, सी टू डी कहाँ गया, सी टू डी ये वाला है, सी टू डी, सी एंड डी। अगेन वॉल्यूम एरिया अंडर पीवी कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस। अब यार लेकिन क्या हो गया, देखो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव डोमिनेटिंग हो गया। इस पॉजिटिव को लेकर यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इतना बच जाएगा ये वाला, और नेट नेगेटिव डोमिनेटिंग है, इसलिए वर्क डन टोटल नेगेटिव आ गया। ये अंडरस्टूड? बीपी करो। ओके ओके। नील, हाँ हाँ सर, मेरे को ये डाउट था, आपने वो ना लास्ट टाइम जो आपने बनाया, वो जो पीवी ग्राफ बनाया, उसमें वर्क डन बाय ए टू बी एंड वर्क डन बाय सी टू डी आइसोकोरिक था, लेकिन इससे उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो अपने कैंसिल कैसे करें? नहीं, आइसोकोरिक वाले में, आइसोकोरिक में तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन तो जीरो ही होता है ना। अच्छा, हम चेंज इन वॉल्यूम देखें। ओके ओके सर। हाँ हाँ yes. यस, हाँ सभी के लिए, सभी साइक्लिक प्रोसेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। हाँ ओके डन, ठीक है। सो आई विल इरेज दिस वन, ये वाला नीचे पहले साइन किया वाला। ओके ओके, ये वाला हो गया। अब जो है, now let us apply energy conservation cyclic process के लिए, this first law। तो cyclic process में energy conservation, तो energy conservation this first law, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू टोटल इज इक्वल टू डेल्टा यू टोटल प्लस वर्क डन टोटल। अब जो है डेल्टा यू इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, टी एफ माइनस टी आई। अब साइक्लिक प्रोसेस है, तो टी एफ इज इक्वल टू टी आई, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट वापस आ गए, तो डेल्टा यू टोटल साइक्लिक में, साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए डेल्टा यू टोटल क्या हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ गया, डेल्टा क्यू टोटल इज इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब है, मान लो आपके पास 3 स्टेप है या 4 स्टेप प्रोसेस है, डेल्टा क्यू ए टू बी, डेल्टा क्यू बी टू सी, और ये सी टू डी प्लस डेल्टा क्यू डी टू ए, इन सब का सम क्या हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी, वर्क डन बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस वर्क डन डी टू ए, ऐसा आ जाएगा। ओके गाइस, फिर जो है क्लास इलस्ट्रेशंस में हमने कहाँ तक किया था, कौन से नंबर तक कर लिया था? हाँ कौन सा डाउट है इसमें, प्लीज सेंड द डाउट अगेन, क्या डाउट था? 5 तक किया था, ठीक है बॉयज। हाउ इज इट टीएफ माइनस टीआई, वो डेल्टा टी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीआई क्यों है? ओके, अरे साइक्लिक प्रोसेस, जैसे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया वापस इसी स्टेट पे आ गए, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो जो है यस,
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए TF इक्वल टू TI, इसलिए डेल्टा U इक्वल टू 0। हाँ ऐसा आएगा। ओके ओके हाँ गाइस ये हाँ Mani, please read the last question, the new question which is to be done. वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. 1 minute. I was just opening the PDF. ओके ओके So we did the fourth question last, I think. fourth question. Okay, and fifth question, what is the first word of the fifth question? First sentence. Calculate the heat absorbed by a system in going through a cyclic process shown in the figure. They're given a cyclic process shape. There's a circle shape. Okay, okay, sir. Circle. Okay. Yes. So we have to do from पहले 4A. का जो है that thing we have done ना A. So 4A is left. इसे करना है. Okay. 4A left है. Okay हाँ. 4A का क्वेश्चन क्या था? Sir, it's in the shown thermodynamic process the correct statement and there is a graph given. Okay, graph given. वो triangle वाले से है ना? हाँ sir, वो 3P naught, 2P naught and all. Okay guys, फिर अपन वहां से कर रहे हैं 4th A से. Okay, 4th A से करना है स्टूडेंट्स. Class illustration 4th A. Sir, actually, I got disconnected. So, can you please tell what you'll be doing right now? Class illustration 4th A वाला. Okay, sir. Thank you. 4th A question. हाँ. In the shown thermodynamic process, the correct statement calculate करना है. Cyclic process given है 3-step cyclic process A to B to C. कौन सा क्वेश्चन करना है? 4th A हाँ. 4th A in the class. Okay sir. Okay sir. हाँ, class illustration thermo third वाला फाइल जो है. Hello, sir. Yes हाँ. आपने जो homework दिया था for HCV, there were certain questions where we had to calculate the work for a U and P graph, like internal energy versus pressure or internal energy versus volume. So how do Yes, we yes. do that? I think so. The 17th and the 18th question of calorimetry in HCV. 17, 18. The copper block वाला question क्या? 1 minute, sir. I'll have to. Sorry. 17 question of HCV. From HCV exercise, right? Yes, sir. HCV exercise में वो copper cube of mass slides down a rough inclined plane वाला. 1 minute, हाँ. sir. I'll just search and I'll get back to you. Oh, sure. सर J का मतलब क्या होता है? J is the conversion factor. Mechanical equivalent of heat. Sorry sir. Mechanical equivalent of heat. I will come to that. हाँ, I will come to that. सर वो तो फिक्स 6 वाला था सर. Okay, 6. Okay हाँ. नहीं पहले रुको. 4th का भाई 4th का A वाला सम आ गया क्या? Yes, sir. सर 5th करके. Yes sir. 4th में किसी को डाउट नहीं. Okay, next year you guys are doing 5th sum.
right? And what is the next question? Please see the first line. Calculate the heat absorbed. Okay. Calculate the heat absorbed. Fifth. Fourth सबका आ गया. Fifth. हर्षल फोर्थ वाला आया ना? फोर्थ ए. यस सर, ये तो निकालना था. ओके ठीक है. फिफ्थ वाला बताओ कैसे कर रहे हो? फिफ्थ वाला ट्राई करो. सो यस. वाले सब में हम यूनिट्स को लीटर और पास्कल में रखेंगे ना? यस, एसआई यूनिट्स में लगते हैं. चलो. जय फिफ्थ वाला कैसे किया? हाँ सर, ये सर्कल का एरिया ढूंढ लिया मतलब. ओके. तो ये तो गया यहाँ से. हाँ, तो वर्क डन इज एरिया. अब भाई कौन सा कर रहा है, पीवी या वीपी? साइन. पहले तो साइन भी डिसाइड करना है. सर वीपी को तो साइन विल बी क्लॉकवाइज में. हाँ, तो नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव. एरिया एनक्लोज्ड पाई आर स्क्वायर. हाँ सर. एक रेडियस प्रेशर का. वॉल्यूम. हर्षल वैल्यूज क्या क्या रखा वहां पर? तो उसमें थोड़ा डाउट था मुझे. मैंने पहले रखा 100 into 10⁻³ हाँ. और फिर रखा 100 into 10⁻³ सर, रॉन्ग लग रहा है मुझे. सेंटीमीटर क्यूब है ना? अरे वॉल्यूम वाला. यस सर. सेंटीमीटर क्यूब में तो 10⁻⁻6 होगा ना? ओके सर, वही पे लगता है रॉन्ग था. सॉरी सर. ओके. मानस, which one you are doing? The sixth one. Okay, sixth one. फिफ्थ के बाद एक और था ना बीच में, फिफ्थ ए वाला. नो सर, फिफ्थ के बाद डायरेक्ट सिक्स्थ है. सॉरी. ठीक है सर. सिक्स्थ में जे के सर आपने इसमें नेगेटिव साइन क्यों लिया? नेगेटिव साइन. हाँ देखो, वीपी कर्व है एंड सेंस कैसा अच्छा है. समझा सर, सॉरी मैंने पीवी कर्व लिया. ओके. फिर सर वॉल्यूम तो ऑलवेज क्यू ऑन. एब्जॉर्ब नेगेटिव होगा ना? हाँ तो हाँ नेगेटिव आया ना. सर पर आंसर में खाली 31.4 लिखा. नहीं, उन्होंने बोला ना एब्जॉर्ब बोल दिया ना. हाँ सर एब्जॉर्ब में नेगेटिव होगा. अरे जैसे कहीं बोला बिजनेस में लॉस ओके. तो माइनस हाँ डालेंगे. तो ओके, समझा. मैग्नीट्यूड ले लेंगे. हाँ. ओके. सर वॉल्यूम एक्स एक्सिस में लेना है ना? लाइक समझ ही नहीं आया. आपने कहा एब्जॉर्ब है तो मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब एब्जॉर्ब है तो नेगेटिव ऑब्वियसली होगा, इसीलिए. हाँ नहीं, उन्होंने एब्जॉर्ब ही पूछा है ना. ओके सर. डेल्टा क्यू. डिसिलरेशन. ओके. मतलब हीट एक्सचेंज पूछा होता तो नेगेटिव रखना होता. हीट एक्सचेंज. यस. ओके. सिक्स वाला. Zia, how will you do the sixth one?
सिक्स क्वेश्चन क्या? सिक्स क्वेश्चन सिक्स, हाँ 6A, रुक जाओ अभी 6 करते हैं ना पहले, ये सबका तो आ गया, सो आई विल इरेज दिस वन। 6 वाला सर आप एक बार बता सकते हो जे क्या है उसमें? तो हाँ देखो, हाँ इसमें ना in this column you assume that you don't know the conversion factor between calorie and joule. You assume say 1 calorie is some x joules. So find x, and this x is called as mechanical equivalent of heat. जैसे J होता था ना, याद है हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री में। सर तो बेसिकली हमें जूल्स में हीट कैलकुलेट करके उसे 2.4 इनटू सम के इक्वेट करना पड़ेगा। यस यस, हाँ मैकेनिकल सर बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 4.186 होती है, यहाँ पर 4.17 यस, ही है। अप्रोक्सीमेशन आ जाता है ना। नहीं, एज पर दिस डेटा बोलेंगे ना। हाँ मतलब एज पर दिस ओके डेटा। सर, ओके ओके सर, समझ गया। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, डेल्टा क्यू टोटल इज इक्वल टू डेल्टा यू टोटल प्लस वर्क डन टोटल। भाई यहाँ पे ये तो क्या, वर्क डन टोटल कितना आ रहा है? 10 जूल शायद। 10 joules. ओके, सो दिस इज 10 जूल्स पॉजिटिव आ रहा है। ओके, एंड ये वाला कितना है? 2.4 कैलोरी। 2.4 calories. And you say the conversion factor mechanical equivalent is say x, so we'll write as 2.4 into x, और ये joules, 10 joules। ये हटा लो यहाँ से, so x की वैल्यू आ जाएगी, the conversion factor किसी को ही j से डिनोट कर रहे हैं। सर पर ये आंसर तो कैलोरी पर जूल होगा ना? This is j, हाँ है, इसका यूनिट क्या है? जूल पर कैलोरी होगा। कितने जूल्स पर कैलोरी ना, एक कैलोरी में इतने जूल पर कैलोरी। Hello, sir. Yes yes, हाँ मम्मी, please sir. I actually was supposed to solve calorimetry, but I solved HCV of thermodynamics. So आपके ही PDF में question number 10 and 11 were the questions I had a doubt in. Okay, The illustrations PDF only. So if we are doing it now, then it will get cleared. Okay, ma'am. हाँ. Yeah, thank you, sir. Sorry. Okay. हाँ. ये x कैसे ढूंढना, एक बार वापस समझा दो नहीं क्या? अरे देखो ना, हम बोले कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू j जूल्स। यस सर। कन्वर्शन फैक्टर हमें पता नहीं है ना, हमने एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाया व्हिच इज फर्स्ट लॉ। यस सर, समझ गया सर। सिक्स्थ ए क्वेश्चन कौन सा है भाई? वन पहला लाइन रीड करो, क्या है क्वेश्चन? सर इसका कोई यूनिट नहीं रहना चाहिए ना फिर? हाँ, इट इज जूल्स पर कैलोरी हो गया ना, कन्वर्शन फैक्टर दिस मच जूल्स फॉर 1 कैलोरी। हाँ सर, 6th is in a thermodynamic process, got it. pressure of a fixed mass. Sir, solve the 10th now. I'm not able to get it. फर्स्ट लॉ का इक्वेशन सिर्फ लगाना है ना? किसमें 6th ए में क्या? हाँ सर। 6th ए भाई ट्राई करो यार, बताओ कैसे करना है। सर 2 मिनट का टाइम दो ना। सर बस वही कि मतलब ऑब्जर्व होता है तो नेगेटिव। हम लेट हिम ट्राई एक बार, तू भी ट्राई करने दो एक बार। हाँ यस सर। Amol, which question you are doing? सर 7th। जल्दी से पहुंचो 10th में और मुझे उसका आंसर बताओ कैसे करना है।
जल्दी आगे बढ़ते जाओ। पर हो गया फर्स्ट लॉ से। ओके भाई 6 से हाँ वंश बताओ कैसे किया। तो फर्स्ट लॉ, हाँ सर। वैल्यूज बताओ क्या क्या रखी यहाँ पर। 30 and -80 डेल्टा क्यू इज 30 + 30 क्या, सर रिलीज बोला है तो माइनस नहीं लेंगे क्या? और ये वाला क्या है। हाँ सर, डेल्टा क्यू माइनस सर -30 होगा ना माइनस डेल्टा 30 क्यू। होगा। सॉरी -30 और वर्क डन क्या है बताओ साइन। +80। वर्क डन बाई गैस है कि वर्क डन ऑन गैस है यार। वर्क डन ऑन द गैस है, माइनस होगा। ओके सर। तो वर्क डन भी माइनस होगा, हाँ सर। सो -30 -18 जूल। -18 है ये वाला। Okay. और डेल्टा यू का क्या होता है, यूएफ माइनस यूआई। हेलो सर। हाँ हाँ सर -30 इसलिए लिया क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज की है। यस गैस हीट इज रिजेक्टेड बाय गैस। इफ हीट एब्जॉर्ब होता या हीट इज गिवन टू गैस देन पॉजिटिव, it is rejected by gas, released by gas, so minus sign. ओके सर, रिकलेक्टेड फाइन। सो yes हाँ वर्क डन माइनस क्यू है, वो नहीं समझा मैं। वर्क डन, हाँ यहाँ वर्क डन बाई गैस है कि वर्क डन ऑन गैस है। ऑन वर्क डन ऑन गया। हमारा तो वाई, हम लोग तो बाई लेते हैं ना, ओके ओके सर, ओके सर। फिजिक्स चल रहा है। हाँ से आंसर निकालो यार, क्या है इसका आंसर। सर आ रहा है 48 जूल सर। 48। यू इनिशियल 60 दी। यू इनिशियल 60 दिया हुआ है। हाँ जे वाले क्वेश्चन में वही करना है आपको, ऐसा प्रिटेंड करना है यू डोंट नो द कन्वर्शन फैक्टर एंड फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर। फ्रॉम द डेटा। हाँ इसके बाद नेक्स्ट 7th वाला। सर हीट गिवन को भी नेगेटिव लेते हैं। क्या हीट इज गिवन टू गैस, मतलब हीट इज गोइंग इनटू द गैस, हीट इज एब्जॉर्ब बाय गैस। Heat is given to gas, heat is going into gas, heat is absorbed by the gas. Positive. That solves 7. 7th वाला। 7th वाला बताओ यार कोई, कैसे करना है इसका। सर वर्क डन निकाल के फर्स्ट लॉ सर निकाल देंगे। डेल्टा यू दिया है, हमें वर्क डन निकालना फर्स्ट लॉ पड़ेगा। इक्वेशन लिख के उससे डेल्टा क्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके ग्राफ कहाँ गया, ये पी वी ग्राफ। ग्राफ दिख रहा है कि ये ऐसा है। ओके ये इधर फिर ऐसा है, तो वर्क डन
तो ये वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन यहाँ से इस वाले में आएगा यार, ए बी सी बोल देते हैं उसको, ए बी सी। तो वर्क डन बी टू सी में तो 0 हो गया। तो ए टू ए बी सी डेल्टा यू ए बी सी ए बी सी। तो वर्क डन ए बी सी को जो है यू विल ब्रेक इन पार्ट्स, ए टू बी और वर्क डन बी टू सी। बी टू सी तो 0 है और ये वाला एरिया निकालना है वर्क डन ए टू बी के लिए। ये कितना आता है? 6000। 6000। ये वाला हो गया भी 6000। और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? 5000। 5000 sir. This is 5000 and heat is 2625 calories into J. This is calories. So 11,000 joules. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2625 into J joules is equal to 11,000 joules. So J is equal to 11,000 divided by 2625. सर Yes, हाँ। सर आपने जब कैलोरीमेट्री में ये जे पढ़ाया था तभी आपने बोला था जे इक्वल टू वर्क बाय हीट विच इज इक्वल टू 4.186 जूल अपॉन 1 कैलोरी। Yes. और सर यहाँ आपने बोला 1 कैलोरी इक्वल टू जे जूल्स करके, मतलब वो जो एक्स जूल्स आपने बोला उसमें जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। तो मतलब Yes, yes, सर हाँ। सर तो उसका फॉर्मूला जे का है क्या? जे इक्वल टू 4.186 अपॉन 1 कैलोरी है या 1 कैलोरी इक्वल टू जे जूल्स करके करना है? नहीं, फॉर्मूला तो वहां पे भी तो वही आया था 4.8186 जूल्स पर कैलोरी, मतलब 1 कैलोरी इज 4.186 जूल्स ना। 1 कैलोरी सर इज 4.1। तो आपने वहाँ जे को 1 मान लिया था। नहीं 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 नहीं, वहां पे भी कन्वर्शन फैक्टर तो वही आया था 4.186 जूल्स इज इक्वल टू 1 कैलोरी। 4 पॉइंट तो नहीं इसको कैसे बोलते हैं? सर 4 आपने पॉइंट ऐसा लिखा था जे इक्वल टू 4.186 जूल अपॉन 1 कैलोरी करके, आपने ऐसा लिखा था वो टाइम पे। जे इक्वल टू 4.186 जूल पर कैलोरी, वही तो हो गया ना 1 कैलोरी के लिए। 1 कैलोरी का कन्वर्शन फैक्टर क्या हो गया? वो तो नंबर मतलब वही हो गया ना 4.186 जूल। सेम वही तो बात आई। जे इक्वल टू क्या लिखा था 4.186 जूल डिवाइडेड बाय 1 कैलोरी, मतलब वही हो गया ना 1 कैलोरी इज 4.186 जूल्स। ओके सर। हाँ So, हाँ ओके गाइस, ये वाला हो गया 7 के बाद फिर 8 करें। so 8 यस हाँ पॉजिटिव लेंगे सर नहीं 8 सेम ही होगा। 8 सेम है। अर्शल यस सर which one next कौन सा कर रहे हो अभी? 9 8 सेम है ना। ओके सर। 8 पर डाउट है। नहीं सर हो गया ओके ओके ठीक है गाइस, किसी और का आगे डाउट तो बताओ जल्दी। फिर कौन सा कर रहे हो? 9th 8 सर सबका आ गया ना? 9th में आ रहा है 9th का। सर हाँ सर मैंने 8th में वर्क की वैल्यू तो ढूंढ ली, लेकिन लाइक आई एम बिट पजल्ड कि मतलब फर्स्ट लॉ में साइंस कैसे पुट करना है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन बताओ। 8 मैं आपको वैल्यूज देता हूँ तो टाइम बचेगा थोड़ा। वर्क डन इज इक्वल टू 52.5 जूल्स आता है। हाँ और डेल्टा क्यू उन्होंने दिया है
70 कैलोरीज, मतलब 70 into 4.2 दैट 70 into 4.2 फिर हीट हो गया तो, और हमें इंटरनल एनर्जी ढूंढना है, तो मैं साइन कैसे पुट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन नेगेटिव है, कितना आया तुम्हारा? 52.5 52.5 आ गया जूल्स। सर आई थिंक उसने एरिया विद पी एक्सिस निकाला है, इसलिए 52.5 आ रहा है। नहीं सर, करेक्ट आ रहा है। नहीं सर, करेक्ट है सर, यही आता है। एरिया विद द वॉल्यूम एक्सिस। हाँ सर, करेक्ट है। और डेल्टा क्यू यस सर 52.5 ही आ रहा है। सर और डेल्टा क्यू 70 कैलोरीज है। -17। हाँ सर, तो यही बताओ ना यार, माइनस कैसे आ रहा है, मतलब मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया। एक मिनट रुको, वर्क डन तुम्हारा करेक्ट आया, सबका मैग्नीट्यूड ये मैच हो रहा है गाइस, बाकी लोगों का भी। यस सर, यस सर। ओके, एंड देखो हीट के लिए दिया हुआ है कि हीट इज क्या दिया, एक्सट्रैक्टेड टेकन आउट फ्रॉम द गैस, सो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। और क्या जूल्स में रखना है, तो 70 क्या दिखा है ना, 70 कैलोरी, 70 into 4.2 करेंगे तब जाके जूल्स में बनेगा। अब इसको इधर ले आओ, ये अंडरस्टूड? Okay sir, so since the heat is taken out from something, so we are taking it negative. Yes. And heat is work, हाँ, and सर work अगर will अंतर become आया तो negative because volume is decreasing, work is negative because volume of the gas is decreasing, gas is getting compressed. Okay So sir, work got done- it sir. सर so सर आप handled एक by बार gases. वर्क का इक्वेशन लिख दोगे, मेरे को 40 का कुछ करके कुछ आ रहा है, एरर आ रहा है, खाली इक्वेशन लिख दो, मैं देखता हूँ। ये ऐसा है, ये वाला एरिया निकालना है भाई ना, ये वाला एरिया निकालने के लिए वर्क डन नेगेटिव रखा, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड, है ना। और ये वाली वैल्यूज कितनी गिवन है, 200, नहीं प्लस ये वाला वैल्यूज कितना है, 200 और 500 ना, तो 200 प्लस 500 के किलो पास्कल 10 टू पावर 3, और ये वाला साइड वॉल्यूम, ये वाला, हाँ ये वाला वॉल्यूम कितना है, 150 सीसी, 150 इंटू 10 टू पावर माइनस, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट So the final answer is Can you do the 12th 241 one? एक मिनट, हाँ हाँ, कौन सा फाइनल आंसर क्या? Sir, I was saying the final answer is 241. ओके, फाइनल आंसर 240 बना रहा है, नेगेटिव ना, माइनस आएगा फिर। Yes sir, negative, yes. ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट 10th, सर ये 8th one. कौन सा? सर 10th वाले में डाउट है सर, सॉल्व ओके, सर इसके बाद 9th वाला है। इसके बाद सर कौन सा? आपने ये 8th वाला किया है। ये 8th है क्या? ओके, फिर 9th, 9th आ गया ना, जनवरी गॉट 9th वन गॉट। So यस, हाँ 9th वाले में प्रेशर 10⁵ है कि 10⁵? 10 power 5. 5 है। Okay. Yeah, I will raise this one. यस सर। 10th वाला, 9th वाला, 9th वाला तो calculate the heat absorbed ना, delta Q is equal to delta U plus W. वो तो आ जाएगा ना, वर्क डन भी आ जाएगा, W is P times V2 minus V1, constant pressure है ना, और डेल्टा U भी निकाल सकते हो। So हाँ, सो डेल्टा यू का हमें फॉर्मूला दिया है 1.5 PV, तो जो V होगा वो क्या रहेगा, इनिशियल की फाइनल? नहीं देखो 1.5 PV है ना,
तो Yes. 1 U2 minus U1 तो P0 V2 minus 1.5 जो भी ये कांस्टेंट प्रेशर P0 V1 Okay, So तो you get- change होगा, okay sir. ये क्या हो जाएगा V2 minus V1 हो जाएगा सर तो P एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना, P0. बर्डन बाय गैस। हाँ ओके सर. Sir, I'm not getting the right answer. Like, can you just substitute and इसमें क्या ये वाला देखो। हाँ हाँ भाई sir. इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स 2.5 P V2 minus V1 कांस्टेंट प्रेशर है एंड कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू कितनी गिवन है 10 to power 5 10 to power 5 पास 10⁵ और ये वाला वॉल्यूम 200 minus 100 मतलब 100 100⁻10⁻⁻6 10 to power minus 6 ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 25. Oh, okay, sir. Got my mistake. कितना 80 कितना 25 आंसर आ जाएगा सर. 25 आ रहा है आपके Yes, exact 25. सर पर जो वर्क का फॉर्मूला होता है उसमें पी इंटरनल होता है ना, यहाँ पे तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया है ना। यस सर, तो केमिस्ट्री वाला लगाना पड़ेगा ना. नहीं यहाँ पे जो है क्या दिया है अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर सर बाहर तो का इरिवर्सिबल हो गया ना प्रोसेस। हाँ सर. हाँ नहीं बाहर का प्रेशर जो है कांस्टेंट और अंदर का भी जो है ना ऑलमोस्ट स्लोली कर रहे हैं हम स्लो एक्सपेंशन करा रहे हैं तो स्लो में ना बाहर का और अंदर का इक्वल लेके जो है कर रहे हैं। यस सर तभी तो इक्विलिब्रियम हो पाएगा। हम सब Yes, sir. सिर्फ इक्विलिब्रियम केसेस डिस्कस करते हैं राइट सर। ये सारे फॉर्मूले ही हमने इक्विलिब्रियम में डिराइव किए हैं ना। यस सर सर सही है। फिजिक्स वाले में हम लोग को इरिवर्सल प्रोसेस कंसीडर करना रहता है क्या? नहीं फिजिक्स में है ही नहीं है। सर ये अच्छा सर ठीक आइसोबैरिक है। हो जाएगा ना फिर। सर पर ये तो Isobaric. इरिवर्सिबल हो जाएगा ना क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है बाहर. कांस्टेंट हाँ धीरे धीरे स्लोली लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th Sir, 9A भी है. ये कौन सा था? बस एरिया फाइंड करना है. ओके ओके 10th आ गया था क्या? ओके सर आज कहाँ तक सर मेरे को डाउट है सर. 10th में मुझे भी डाउट है सर. सर 10th सॉल्व करो ना. एक मिनट जाओ 10th का क्वेश्चन बताओ। एक मिनट कैन आई इरेज दिस वन? सर 2 मिनट रुको ना अटेम्प्ट करना। ओके ओके ठीक है जल्दी जल्दी ये वाला कॉपी हो गया सबका? सर पर जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें हमें ऐसी कंडीशन होती है ना कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल ऑलवेज। पर अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है तो फिर इरिवर्सिबल ही होगी ना प्रोसेस फिर मतलब उसे ना मतलब मूव कराने के लिए थोड़ा सा एकदम डेल्टा ज्यादा और स्लोली मूव करा रहे हैं वैसा करें। सर पर क्वेश्चन में बोला अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ना, तो लाइक हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं कर रहे ना। तो यस एक्सटर्नल चेंज नहीं कर रहे हैं और इंटरनल को डेल्टा इंक्रीज करके धीरे धीरे स्लोली विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड उसको एक्सपैंड करा रहे हैं। डीपी ज्यादा होगा ना अंदर का। हाँ डेल्टा उससे ज्यादा लेके तभी वो मूव करेगा आगे साइड। यस सर डीपी ज्यादा होगा इसलिए तो वो मूव कर पाएगा। यस डीपी ज्यादा होगा। यस सर टीवी ग्राफ में कैसे ये वर्क डन Which one? ढूंढेंगे? टीवी Which one? ग्राफ में 10th में सर. Hello, sir. Yes, yes, हाँ. These were the two doubts I had, question number 10 and 11. Okay, so Manvi, what were you thinking? How did you try to solve them? सर वो NR डेल्टा T वाले लगा लें. Can you just give 2 minutes to attempt 10th one? Sure. सर 10th वाला आपने शायद से आंसर गलत दिया है. आंसर रॉन्ग दिया है। सो एक बार आप सॉल्व कर दो ना अगर हम कंफर्म कर पाएंगे. तो प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ सर 2 मिनट. ये आंसर है क्या इसका? हाँ यस सर.
सर 4250 दिया है। 4250 है क्या? ओके ओके। फोर फाइव टू जीरो। ओके, मैंने वहाँ 4250 रखा। श्रेयांश, यस सर। how will you do? सर अटेम्प्ट कर रहा हूँ सर। V1 V2 मतलब वो वॉल्यूम्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखता हूँ सर। नहीं, अप्रोच तो बताओ, मेन अप्रोच। सर रुको सर, ट्राई कर रहा हूँ। ओके। सर आई थिंक NR डेल्टा T से होगा। हाँ सर, NR डेल्टा T से होगा। यस सर, क्योंकि हमें PV चाहिए, P डेल्टा V चाहिए, राइट सर। Okay. Can anybody give me other hint? किसने किया? सर मैं ट्राई करता हूँ, मैंने एक्चुअली NR डेल्टा T से हो जाएगा। इससे गलत आ रहा होगा, बट मैं ट्राई करके देखता हूँ सर। हमू? हाँ यस सर। यस यस यस। हाँ दिव्या करेक्ट। हाँ कैसे किया दिव्या? हाउ डिड यू डू? प्लीज एक्सप्लेन। सॉरी एक्चुअली 4525 नहीं आ रहा कुछ, और 4525.6 था, मतलब डेसिमल में भी आ रहा है, एग्जैक्ट 4520 नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, उसमें थोड़ा ठीक है, मैं करेक्शन देख लेते हैं अपन। यस यस, तो आपका जो है डेल्टा यू टोटल जो है 0 आंसर इज 4525.6 आ रहा है। हाँ 4525.6। सर NR डेल्टा T लगा देंगे। डेल्टा क्यू डेल्टा टोटल यू क्या टोटल लिखेंगे? 0। हाँ, डेल्टा क्यू टोटल विल बी हाउ मच? 0 सर। अरे जीरो डेल्टा क्यू, हाँ डेल्टा क्यू डेल्टा यू सुना सर। माइनस 1200 1200 माइनस 1200। और ये जो है तीन पार्ट्स हैं भाई, क्या क्या है? A to B, B to C और C to A। यस सर। हाँ, अब A to B क्या है? सर आइसो को एक नहीं चेंज होगा। A to B, A to नहीं, कौन सा आइसो को? वो प्रेशर कांस्टेंट है ना? ये वाला आइसो को है ना, C to A वाला। यस सर। हाँ यस सर। और A to B क्या होगा? आइसोबारिक। आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में वर्गन कितना होता है? NR डेल्टा T होता है, और ये अननोन है। तो ये जो आपने लिखा ये -4520, ये सही आंसर है या गलत आंसर है? सही आंसर है। ओके फाइन, थैंक यू सर। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? डेल्टा टी 200 सर समझ गया। 500 माइनस 300। ओके सर 25/3 is allowed। तो 25/3 क्या, या 8.314 रखूं क्या? Sir, I took 8.314, like that is why I was asking, like is it allowed? एग्जाम में सर नहीं, वैसे उन लोग देते हैं वहाँ पे, टेक R इक्वल टू 25/3 या 8.314 देके। सर इसीलिए डेसिमल में आ रहा था। ओके ओके ओके, मतलब अगर कि उसमें रखेंगे तो 25/3 में करेक्ट अच्छा आंसर होता है क्या? नो सर, तो भी नहीं आएगा, एक भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। यस सर। ओके सर बट 1200 तो 25 से डिविजिबल है, आ जाएगा। तो प्रेशर का कौन सा? अरे पर उसको थोड़ी डिवाइड करना है, हमें तो 400 को डिवाइड। वो तो मल्टीप्लाई होगा ना अगर ऊपर कीजिए। -45। सर कोई भी ले ले सर, डेसिमल में तो आएगा ही आंसर, वो लोग ने अप्रोक्सीमेशन किया है लगता है। यस सर। ओके
चलो नेक्स्ट करो जल्दी 11। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर में कोई टेस्ट में, तो सर वो वैल्यूज में ऑप्शंस के वैल्यूज में बहुत डिफरेंस होएगा ना, मतलब। यस यस यस, वैल्यूज की हाँ डिफरेंस होगा, दे विल बी वे ऑफ। हाँ ओके, थैंक यू। सर आज कहाँ तक करना? करते हैं ना, बिल्कुल अभी तो टाइम 1:30 को जाएंगे, अभी रुको। सर 4520 नहीं आ रहा है ये सॉल्व करके। ठीक है, आसपास मतलब डेसिमल फॉर्म में उसका कुछ आ रहा था ना, कितना आया था यार? सर मुझे 4525.6 आ रहा है। 4525.6। यस सर। नेगेटिव हाँ नेगेटिव। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 11th। सर ये भी वैसा ही होगा। यस सर। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर इसमें U को T से रिप्लेस कर सकते हैं ना? यस, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा ना, U इज इक्वल टू F/2 nRT। U is equal to KT। यस, तो U is directly proportional to T। हाँ। U is directly proportional to D। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मतलब टीवी ग्राफ। टीवी ग्राफ जैसा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ। आइसोकोरिक कौन कौन से हो गए यहाँ पर? सर how are they getting an AD और absolute BC answer? AD और BC आइसोकोरिक होगा। तो वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, तो फिर वो लोग का एब्सोल्यूट आंसर कैसे है? V नॉट के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ओके, इसमें क्या एन हाँ सर। यहाँ इधर वाले का टेम्परेचर कितना है? A to B में टेम्परेचर क्या चल रहा है? 500 सर A to B 500 और D to मतलब C to D 300। NR 500 LN वॉल्यूम का जरूरत नहीं है, कट हाँ जाएगा। हाँ 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 सॉरी। NR 300 LN of V final by V initial। वॉल्यूम हाँ डबल हो रहा है ना, NR 500 LN2 और ये -1/2 है, मतलब माइनस जाएगा। So it's VNR 500 minus 300 LN2 and LN2 is 0.690। सर इट्स रीड आउट है। सर आपको एलन वाली टर्म कहाँ से आई? एलन वाले टर्म क्यों है? बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस इज nRT ln V final by V initial। Sir, you said some approximate value of LN2. Can you repeat? वो LN2 की वैल्यू, ये एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी में काफी यूज होता है, इसलिए मुझे याद रह गया 0.693।
नहीं, ये तो विशाल सर ने भी बोला था याद रखने को, LN2 का वैल्यू ओके ओके। 0.693 वो। ऐसे ऐसे भी याद होना मॉडल चाहिए क्या 2 3 4 नहीं 5 ऐसा याद होना चाहिए? नहीं सिर्फ हाँ, ये हाफ लाइफ यूज करते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो हाफ लाइफ में LN2 जो काफी यूज होता है 0.693 बाय लैम्डा ऐसा करके, टी हाफ करके आता है ना हाफ लाइफ। सर एक हाँ सिली डाउट है। थर्मल के आगे लिए भी पढ़ेंगे, सर एक आगे सिली डाउट है। हाँ हाँ सर, मेरे को पूछना था कि मतलब ln इक्वल्स टू लॉग कुछ होता है ना, वो मैं भूल गया, वो क्या होता है? बेसी, log to the base e। अच्छा ठीक है log to the base e, yes। सर हाँ हमें कैसे पता ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साइक्लिक दिया है इसलिए। हाँ नहीं देखो यहाँ से इन द A to B, इन द प्रोसेस A to B, ये इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग दो आइसोथर्मल प्रोसेस का एडिशन कर रहे हैं क्या? हाँ, बिकॉज ये ग्राफ में इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है ये आइसोथर्मल हो गया, वैसे ये वाला भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल हो गया। ओके सर। सर इसमें भी आंसर 2310 आ रहा है। यस सर 2304 आ रहा है। मैंने 25/3 लिया। 2304 मैंने भी 25/3 लिया। मैं 8.314 लिया। 2304 ln 2 से कट हो जाएगा। 2304.64 लाइक वो लोग ने मतलब हर एक में अप्रोक्सीमेशन किया है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। 0.641 एक और हो सकता है क्या 12th वाला भी? जल्दी है सर, एग्जाम है सर। एग्जाम में पढ़ना है। ओके ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। सर आप नेक्स्ट डाउट लेक्चर में मॉड्यूल के डाउट्स लोगे HCV के? सर मॉड्यूल सर HCV ले लो ना सर, वो HCV हमेशा लास्ट में बच जाता है मॉड्यूल के डाउट्स को प्रायोरिटी देते तो। नहीं सर अभी HCV मत लो सर, हुआ नहीं है पूरा। हाँ सर अभी HCV बाद में लो सर, HCV बाद में लो, अच्छा रहेगा। सर HCV टेस्ट जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ ही खत्म कर देंगे। हाँ सर, फिर रिवीजन भी हो जाएगा। चलो ठीक है फिर हाँ ठीक है फिर HCV, ठीक है HCV फिर बाद में कर लेते हैं बुकलेट, लेकिन हाँ पहले बुकलेट तो होते जा रहा है तो पहले बुकलेट ही कर लेते हैं ना गाइस। सर तो अभी HCV स्टार्ट नहीं करे तो चलेगा। लास्ट क्या लास्ट क्या सर मतलब जो लास्ट टाइम आपने होमवर्क दिया था, मतलब कल के पहले, उसमें उसके एक्सरसाइज 5 डाउट्स बचे थे, तो आप वो पहले लोगे ना? 4 के भी बचे थे थोड़े। ठीक है सर चौथा वाला भी कंप्लीट नहीं ठीक था। है हाँ वो फिर वैसे ही कर लेते हैं, वो वाला अपन बुकलेट का करके फिर करते हैं। हाँ सर नेक्स्ट वेडनेसडे तक सारा बुकलेट का होमवर्क हो जाना चाहिए। सिर्फ बुकलेट का, बुकलेट HCV बाद में करते हैं, अगर किसी ने टाइम मिल रहा है तो भी करते चले जाओ। यस हाँ यस निश्चित हाँ करेक्ट। लेक्चर ओवर। ओके हाँ गाइस, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, लेक्चर इज ओवर। हाँ फिर वी सी लेट्स मीट ऑन मंडे। हाँ मंडे फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। मानवी यू हैड डाउट इन विच वन? ये वाला हो गया था ना? नचिकेत you are saying something, क्या था नचिकेत, what are you saying? सर कल जो आपने होमवर्क भेजा वो वेडनेसडे तक खत्म करना है ना? वेडनेसडे कहाँ से कर लो, बुकलेट एटलीस्ट बुकलेट वाला से। हाँ ओके सर। हाँ सर हाँ सर जो ये क्लास इलस्ट्रेशन का 5th क्वेश्चन था, उसका मेरे को समझ गया कि हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करेंगे वो सब, बट सर क्वेश्चन का स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब तो गैस कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि Q तो नेगेटिव आ रहा है। 5 में ना, 5 Q नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से बता रहा, व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड करो। सर वो सर्कल वाला एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ वहाँ पे उन्होंने बोला है हीट एक्सचेंज नहीं, हीट एब्जॉर्ब बोला है। हाँ सर, बट हीट अब्सॉर्ब तो गैस कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि हम लोग नहीं हीट एब्जॉर्ब Q का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है।
हाँ क्योंकि हाँ इसमें जो पूछा है कैलकुलेट दी हीट एब्जॉर्ब ना, तो आपका हीट एक्सचेंज का वैल्यू नेगेटिव आया है। हाँ तो हीट एक्सचेंज का वैल्यू नेगेटिव मतलब हीट लूज कर रहा है सिस्टम एक्चुअली। हाँ वही मतलब वही आना चाहिए तो जीरो वैसे। आना चाहिए। हाँ मतलब हाँ वो लोग देना मतलब लैंग्वेज सर में, हाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज स्टेटमेंट में। होना चाहिए था कि हीट रिलीज बाय द गैस हाँ वो ठीक रहता का है। वैल्यू हाँ बताओ। यस सर। यस हीट रिलीज बाय द गैस। ओके सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली हीट अब्जॉर्ब्ड हम नेगेटिव ही लेते हैं ना। हीट एब्जॉर्ब जो है नहीं अपने अपने फिजिक्स के हीट कन्वेंशन, एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव। हाँ फिजिक्स के कन्वेंशन में हीट एब्जॉर्ब पॉसिबल। अच्छा हाँ सॉरी सर दोनों में पॉजिटिव है ना, दोनों का कन्वेंशन हीट का तो सेम ही है ना, हीट सिर्फ का, वर्क हाँ का हीट का चेंज सेम ही हुआ है, है, हीट का भी सेम है, डेल्टा यू का भी सेम है, सिर्फ उसमें ही डिफरेंस है वर्क वर्क डन का में, चेंज हुआ है। बस वर्क का ही चेंज है। ओके सर वो होता है क्योंकि केमिस्ट्री में हम बाय द सिस्टम बोलते हैं ना सर। वर्क डन ऑन गैस बाय सराउंडिंग, वर्क डन हाँ ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सॉरी बाय सिस्टम द बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग, सॉरी बाय द सराउंडिंग। हाँ वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, यहाँ पर वर्क डन बाय गैस। और सर ओके सर। हाँ सर मुझे एक सिली डाउट था कि हम लोग मतलब ये जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है, उसके कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप पर हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर सकते हैं ना? किसी भी ड्यूरेशन में यू वांट टू से, नहीं मतलब अभी सपोज यहाँ पे आपने जो मतलब बोर्ड पे अभी जो है उसमें अगर हम लोग को ए टू बी में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऐसे मतलब? यस हाँ ए टू बी वाला यूज करना है तो ए टू बी में ही हीट सप्लाइड और ए टू बी का ही वर्क डन, तो ए टू बी का वर्क डन जो होगा फिर आपको निकालना पड़ेगा ना, और ए टू बी का वर्क डन और ए टू बी में तो डेल्टा यू जीरो है ना। तो सर अगर साइक्लिक प्रोसेस में मतलब हीट और वर्क डन सेम होगा मतलब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप पर? नो टोटल की वैल्यू टोटल से ओके मुझे लगा कि सर वो वर्क डन बाय ए टू बी एंड हीट मतलब जो रिलीज्ड और एब्जॉर्ब फ्रॉम ए टू बी विल बी द सेम, ऐसा मुझे लगा। नहीं टोटल में जैसे मान लो यहाँ 3-4 टर्म्स है, यहाँ भी 3-4 टर्म्स है, यहाँ के 3-4 टर्म्स का सम और यहाँ पे भी 3-4 टर्म्स का सम वो सेम होगा, इंडिविजुअल ओके कैसे बोल सकते हो, ओके सर, वही इंडिविजुअल। डाउट था बस बस। ओके थैंक यू सर। सर एक ऐसे छोटी चीज पूछनी थी, पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज आस्क। सर मतलब हम लोग जब बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट पे वर्क डिफाइन करना होता है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंजेस और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यस दोनों में से कौन सा सही होगा? ओके यू आर सेइंग कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हाँ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? जिस पॉइंट पे नहीं जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका ना, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं ऐसे बस एक ऐसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उस पे मैं बस फोर्स का एप्लीकेशन चेंज करते रह रहा हूँ तो वर्क होगा? एक्चुअली क्वेश्चन मतलब समझा नहीं, मतलब यू आर सेइंग कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर चेंज हो रहा है, हाँ उसका फोर्स है और वो वाला पॉइंट मूव कर रहा है ना। नहीं स्टेशनरी हो पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मैं उसका बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन सर जैसे एक कार को किसी हथौड़े से मारते रहो लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग एक दो दूसरे एक मतलब अलग अलग तरफ से मार रहे हैं। ओके तो आपने जैसे उसको किया ना, तो आपका जो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा और वहां पे जो डेंट आया, तो जहाँ पे फोर्स लग रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन तो हुआ, उसी से की वजह से जो है हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, मतलब मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ गया, डिफॉर्मेशन आ गया ना। और ऐसा अगर मैं करूँगा कि ऐसे रेलिंग पे अगर मैं हाथ रख के ऐसे दौड़ रहा हूँ आगे तो उसमें भी वर्क डन होगा फिर? रेलिंग्स पे हाथ जैसे रख के फोर्स थोड़ा लगा के रन करूंगा अगर मैं तो? पर सर वो तो इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा ना फोर्स। आदमी से का रेलिंग पे लगा रहे हो तो रेलिंग पे जब आपका हाथ कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट पे है तो उस समय फ्रिक्शन विल बी द वर्क डन। तो
नहीं, जैसे वी सेइंग कि जैसे मान लो स्टेयर केस में चढ़ रहे हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? स्टेयर केस में मान लो चढ़ रहे हो ऐसा? हाँ, तो ऐसे रेलिंग पे हाथ रख के ऐसे अगर मैं फोर्स आके अगर आगे जाता हूँ तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, तो उसमें वर्क नहीं डन लेंगे कि नहीं? ये उस मोशन में तो फिर आपके अंदर मसल्स का जो है, मसल्स वगैरह वो लगा रहे हैं ना, वो उनसे उनसे वर्क डन हो रहा है ना। अगर वैसा देखेंगे कि लैडर का वर्क डन तो है ही नहीं, क्योंकि लैडर पे जहाँ पे आप लगा रहे हो फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो वाला पॉइंट तो उस समय रेस्ट पे रहा। फिर जैसे ही आपने दूसरा ऊपर उठाया तो फोर्स हट गया, नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। अच्छा, मतलब इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग फिर। यस। अच्छा ठीक है सर। सर तो फिर हाँ। ये एक स्टेटमेंट था कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं? नहीं एक सर, बार ये वाला क्वेश्चन। नहीं, सॉरी सर। कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव हो रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन इट। जैसे फिर वो वाला सिचुएशन हो गया कि हम एक बॉडी को, जैसे बोल रहे हो कार को लेके कर रहे हैं ना, कार को और हिट कर रहे हो, बैंग कर रहे हो, तो वो वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार भेजना मुझे। सर हम हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन करते हैं ना। वर्क डन बाय मतलब वर्क डन बाय एनी फोर्स ना, कोई सा भी फोर्स मतलब। लेकिन वो यहाँ पर किस फोर्स का वर्क डन, क्वेश्चन है क्या वाला हमारे पास अभी? हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट भेज रहा हूँ। भेजा आपको व्हाट्सएप पे सर। एक मेरा फोन इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, मैं एक बार देख के मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ओके सर। हाँ हाँ, सर ग्रुप पे भी रिप्लाई कर देना। ग्रुप में रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ ओके गाइस, फिर इतना ही करते हैं। सर आपने जो पहले होमवर्क दिया था ना केटीजी वाला, उसमें कुछ तो साउंड के क्वेश्चंस थे, तो वो छोड़ना है क्या? हाँ यार, साउंड वाला गलती से आ गया होगा। हाँ, साउंड वाला भी मत करना, एक दो क्वेश्चन शायद गलती से आ गया होगा। हाँ, 2 सम थे। साउंड वाला मत करना। हाँ, हाँ वो ओके सर। एक्सरसाइज 4 में दे दिया था क्या मैंने? हाँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज, फोर हाँ लास्ट हाँ, में आपने बोला था साउंड का मत। 33rd वाला था आई थिंक। साउंड का, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड ना वो वेव्स में कराएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT बाय m होता है, लेकिन वो डिराइव अभी नहीं हुआ है ना, इसलिए अभी नहीं कर पाएंगे। स्पीड ऑफ ओके सर। साउंड ये वाला फॉर्मूला आएगा, जो है स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम v is equal to gamma p by rho, which is same as v is equal to gamma RT by m मोलर मास। हाँ, मोलर मास ये डिराइव होगा आगे साउंड वेव्स चैप्टर में। ओके सर। हाँ, ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।